جیسا کہ ہم گزشتہ قسطوں میں جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ایک کثیر تعداد 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی کے درمیان یہودی ہو گئے تھے، اور آج دنیا کی کل یہودی آبادی میں سے 99.7% یہود یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہیں، جن کو انگریزی زبان میں اشکنازی جوز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ وہی یہودی ہیں جو آج جروسلم کے علاقے میں آباد ہیں، جس کا اشارہ نہ صرف قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت میں موجود ہے بلکہ اس کا واضح ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، جس کی تفصیل سے وضاحت ہم گزشتہ قسطوں میں کر چکے ہیں۔ اور اسی یاجوج ماجوج کی قوم کے ایک کارندے یعنی والٹر روتھشائلڈ کے ساتھ برطانوی حکومت نے جنگ عظیم اول کے دوران بیلفور معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں جروسلم کے علاقے میں باقاعدہ طور پر ایک زائنسٹ یہودی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا۔ جیسا کہ ہم گزشتہ قسط میں بیان کر چکے ہیں کہ روتھشائلڈ خاندان کا بنیادی کاروبار بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہے، اور اگر انہیں موجودہ بینکاری نظام کا بانی بھی کہا جائے تو یہ بھی کچھ غلط نہ ہوگا۔ وہ نظام جو دھوکے، سود اور کاغذ کے ٹکڑوں پر مبنی ہے، جسے آج ہم کرنسی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کاغذی کرنسی کا آغاز یورپ سے بہت پہلے چین کے علاقے میں ہو چکا تھا۔ چین میں بھی دنیا کے اکثر علاقوں کی طرح تجارت دھات سے بنے ہوئے سکوں کے ذریعے کی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ بڑے تاجروں کو تجارت کے لیے وافر سرمایہ کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اس رقم کے ساتھ سفر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک تو ان دھاتوں کا کافی وزن ہوتا ہے، اور دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ سلک روٹ پر تجارت کے دوران راہزنوں کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ اس مسئلے کا حل چینی تاجروں نے کچھ یوں کیا کہ اپنی تمام رقم وہ ایک بااعتماد ایجنٹ کے پاس رکھوا دیا کرتے اور اس کے بدلے رسیدیں لے لیتے، اور پھر ان رسیدوں کے ذریعے چینی تاجروں نے تجارت کرنا شروع کر دی اور ان رسیدوں کو کرنسی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ معاملہ اسی طرح نجی ایجنٹس کے ذریعے ایک طویل مدت تک چلتا رہا۔ پھر 907 سن عیسوی میں سونگ ڈائنسٹی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد حکومت کی طرف سے مخصوص ایجنٹس کو لائسنسز جاری ہونا شروع ہو گئے، اور پھر 11ویں سن عیسوی کے دوران سونگ ڈائنسٹی نے دنیا کی پہلی حکومت کی پیپر کرنسی جاری کرنے کا آغاز کیا، اور چین سے تجارت کرنے کی وجہ سے یورپ میں بھی کچھ عرصے بعد کاغذی کرنسی متعارف کر دی گئی، جس کا آغاز ہوا سویڈن اسٹاک ہوم سے، اسٹاک ہومز بینکوں کے ذریعے، لیکن بہت جلد اس بینک کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے بغیر کوئی سونا اور چاندی کے ریزروز رکھے بہت زیادہ مقدار میں کرنسی نوٹس چھاپنا شروع کر دیے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے دور میں بھی اکثر ممالک میں ریزروز کے طور پر کوئی دھات جیسے کہ سونا اور چاندی موجود نہیں، اور جن بینکس میں دنیا کا بیشتر سونا آج موجود ہے وہ بینکس کسی حکومت کے ماتحت کام نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس دنیا کی حکومتیں ان کے ماتحت کام کر رہی ہیں۔ موجودہ کرنسی کے نظام کو پروان چڑھانے میں روتھشائلڈ خاندان کا کلیدی کردار ہے، جس خاندان کی ابتدا اس نام کے ساتھ جرمنی کے علاقے فرینکفرٹ سے ہوئی۔ یہ تمام معاملات جاننا اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ تمام معاملات جان کر ہمارے سامنے ہمارے دور کے ایک عظیم فتنے کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ہماری تمام ناظرین اور سامعین سے بھی گزارش ہے کہ آپ خود بھی ان معاملات پر تحقیق ضرور کریں۔ ایمشل موزس باور جرمنی کے علاقے میں بسنے والا ایک منی چینجر تھا، اور اس نے 1743 میں فرینکفرٹ سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا، جہاں اس نے ایک کاؤنٹنگ فرم کھولا، جس کے دروازے پر اس نے لال رنگ کی ڈھال ٹانگ دی جس پر رومن چیل بنی ہوئی تھی۔ جرمن زبان میں لال کو روتھ اور ڈھال کو شائل کہتے ہیں، تو بہت جلد یہ کمپنی روتھشائلڈ فرم کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جب یہ فرم ایمشل موزس باور کے بیٹے یعنی ایمشل مائر باور کے ہاتھ میں گئی تو اس نے اپنا خاندانی نام باور سے تبدیل کر کے اپنی کمپنی کے نام پر روتھشائلڈ رکھ لیا۔ اس خاندان نے اپنی کاروباری سرگرمیوں کے دوران یہ جان لیا تھا کہ اکثر لوگ اپنے رکھوائے ہوئے سونے کا کسی بھی وقت اوسطاً صرف 10% تک حصہ ہی استعمال کرتے ہیں، تو بجائے کہ یہ 90% حصے پر قرضے مہیا کرتے، کیونکہ اس وقت تک رسیدیں بھی مال کی جگہ استعمال ہو رہی تھیں، تو انہوں نے کاغذی رسیدوں کے ذریعے 900% تک قرضے فراہم کرنا شروع کر دیے، اور یہاں سے آغاز ہوا فریکشنل ریزرو بینکنگ کا، اور یہی بینکنگ ماڈل آج بھی استعمال ہو رہا ہے، جس کا مطلب
मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान आज बैंक में लाख रुपए रखवाए तो जहां उसे लाख रुपए पर माहाना 800 रुपए मिलते हैं तो उसी लाख रुपए के जरिए बैंक्स 8,000 रुपए तक कमा रहे होते हैं। इसी वजह से आज आप जो भी बैंक देख लें, अक्सर की इमारतें सबसे ज्यादा ऊंची और आलीशान होंगी। और इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए रॉथस्चाइल्ड खानदान ने बेपनाह दौलत कमाई और अपने असर और रसूख में भी इजाफा करते चले गए। माशी तारीखदानों के मुताबिक रॉथस्चाइल्ड खानदान की तेज तरक्की की एक और वजह यह भी है कि बजाय अफराद को कर्जे फराहम करने के, इनकी ज्यादा दिलचस्पी हुकूमतों को कर्जे फराहम करने में रहती थी, खास तौर पर जंगों के दौरान, क्योंकि अफराद की बनिस्बत हुकूमतों को फराहम किए गए कर्जे न सिर्फ मिकदार में ज्यादा होते हैं, जिस पर न सिर्फ इन्हें ज्यादा मुनाफा मिलता था, बल्कि अवाम पर लगाए गए टैक्स के जरिए उन कर्जों की वापसी भी यकीनी होती थी। एम्शल रॉथस्चाइल्ड के 5 बेटे थे और उसने उन सब को इसी कारोबार की तरबियत देकर यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में खानदानी कंपनी की ब्रांच ऑफिसेस खोलने के गर्ज से भेज दिया, जिनमें से उसका सबसे बड़ा बेटा यानी एम्शल मायर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही रहा ताकि कंपनी के हेड ऑफिस की देखभाल कर सके। दूसरे बेटे सोलोमन को वियना भेज दिया गया, तीसरे बेटे यानी नेथन रॉथस्चाइल्ड को लंदन भेज दिया गया। इसी तरह चौथे बेटे कार्ल को नेपल्स और 5वें बेटे जेकब रॉथस्चाइल्ड को पेरिस भेज दिया गया और इस तरह रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग माफिया का आगाज हुआ। एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर रॉथस्चाइल्ड बैंकर्स को किसकी पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी बिना पर यूरोप की अक्सर हुकूमतों के साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे। जाहिर है उस दौर में इस कारोबार का इन्हिसार ज्यादातर एतबार पर होता था, जैसा कि आज भी है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि कोई बैंक अपने कारोबारी मामलात में ठीक नहीं, जैसा कि रकम की वापसी में या फिर रकम का तबादला करते वक्त वो जरूरत से ज्यादा पैसे काटें या ओवर बिलिंग करें, तो जाहिर है कि अक्सर लोग ऐसे इदारे के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। इन्हीं मामलात की देखभाल के लिए आज के दौर में स्टेट बैंक जैसे इदारे मौजूद होते हैं। तो रॉथस्चाइल्ड खानदान की पुष्टपनाही कौन से इदारे या लोग कर रहे थे, जिनके जरिए 100 साल के अंदर इस खानदान को यूरोप के माशी मामलात पर भरपूर गिरफ्त हासिल हो गई थी। रॉथस्चाइल्ड जंगों के जरिए भी खूब माल कमाने और हुकूमतों और माशी निज़ाम पर अपनी गिरफ्त में इजाफा करने में महारत रखते थे। जाहिर है कि जंग के दौरान मईशत पसे पुश्त चली जाती है, क्योंकि जंग के दौरान अवलीन मकसद मुल्क या निज़ाम की बका और दुश्मन की हार होती है, और जंगें चाहे गोलियों या तोपों से की जाएं या फिर हवाई जहाज और तबाही मचा देने वाले बॉम्ब्स के जरिए, जंग करना कोई सस्ता काम नहीं। अक्सर तारीखी हवालों में ये भी देखा गया कि जंग करने वाले ममालिक जैसे कि फ्रांस और बरतानिया को नेपोलियन के दौर में दोनों जानिब से यही बैंकस्टर्स माफिया माशी मावनत फराहम कर रहे थे। अक्सर लोगों के लिए ये बात यकीनन हैरत अंगेज होगी। जाहिर है कि जंग दो मुखालफिन के दरमियान होती है और जंग के दौरान जहां किसी की जीत होती है तो कोई हारता भी है, तो बज़ाहिरन नामानूस अफराद को यही लगेगा कि हारने वाले को दिया गया कर्जा जाया हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जंग के बाद फातेह पर यह लाजिम होता था कि वो हारे हुए मुल्क के तमाम कर्जे अदा करने का जिम्मेदार होगा, जो कि अक्सर वो फातेह वहां पर रहने वाले अवाम से टैक्स के जरिए वसूल किया करते थे। तो कोई हारे या जीते, बैंक को हर हाल में फायदा होता है, और इस असूल के मुताबिक ये माशी दहशतगर्द यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जंगें हों, और ऐसा ही होता रहा और आज भी हो रहा है। जिस बात की वजाहत खुद एम्शल मायर रॉथस्चाइल्ड की बीवी गुटल रॉथस्चाइल्ड ने कुछ ऐसे की कि उसने कहा कि अगर मेरे बेटे चाहें कि कोई जंग ना हो तो दुनिया में कोई जंग ना हो। इन मामलात की एक वाज़ेह मिसाल नेपोलियन की वाटरलू की जंग के दौरान मिलती है। नेपोलियन की यूरोप के साथ जंगों में शिकस्त के बाद उसे फ्रांस से जिला वतन करके एल्बा आइलैंड्स भेज दिया गया। यूरोप में इंतहा की अफरा तफरी फैलाने के बावजूद नेपोलियन के लिए एल्बा में रिहाइश का बेहतरीन निज़ाम मौजूद था, जैसे कि एक आलीशान विला और नौकर चाकर वगैरह, और नेपोलियन यकीनन वहाँ आरामदेह और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और 1815 में वो मुबैना तौर पर एल्बा से जिला वतनी से तकरीबन 1 साल बाद फरार होने में कामयाब हो गया। जब नेपोलियन फ्रांस पहुंचा तो फ्रांसीसी फौज अपने पुराने लीडर के पीछे खड़ी हो गई और नेपोलियन बरतानवी हुकूमत पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हो गया। नेपोलियन का रास्ता रोकने के लिए ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने भी अपनी फौजें रवाना कर दी और आखिरकार दोनों फौजों का आमना सामना हुआ बेल्जियम में वाटरलू के मकाम पर 18 जून 1815 को। ये बात भी काबिल गौर है कि मौजूदा दौर बेल्जियम का ये इलाका उस दौर में नीदरलैंड्स के कब्जे में था, वही नीदरलैंड्स जहां डच या जर्मन कौम आबाद थी और है।
वही नीदरलैंड्स जहां दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जिस कौम के ताने बाने भी रॉथस्चाइल्ड खानदान के साथ जा मिलते हैं, और आज भी वहाँ एक शाही खानदान आबाद है और दुनिया के जाने माने इदारे उनके मातहत काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल कंपनी शेल, जिसका पूरा नाम रॉयल डच शेल है। वाटरलू के मकाम पर नेपोलियन को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसका भरपूर फायदा उठाया रॉथस्चाइल्ड खानदान ने। जैसा कि हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि एम्शल मायर रॉथस्चाइल्ड ने अपने 5 बेटे यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में खानदानी कारोबार को फरोग देने के गर्ज से भेज दिए थे, जिनमें से एक नेथन रॉथस्चाइल्ड था, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के क़याम के 100 साल बाद 21 साल की उम्र में बरतानिया पहुंचा, और इस मार्के में नेथन रॉथस्चाइल्ड सबसे ज्यादा मुनाफे में रहा। जंग के दौरान नेथन रॉथस्चाइल्ड ने अपना एक बाएतमाद कारिंदा, जिसका नाम रॉथवर्थ था, वाटरलू के मकाम पर तैनात कर दिया। जब उसने देखा कि नेपोलियन जंग हार गया है, तो ये खबर नेथन रॉथस्चाइल्ड को पहुंचाने के लिए वो फौरन बरतानिया रवाना हो गया, और ये खबर नेथन को आम लोगों और हुकूमत से भी एक दिन पहले ही मिल गई। सुबह होते ही नेथन रॉथस्चाइल्ड स्टॉक मार्केट में अपने मामूल की जगह पर खड़ा हो गया। सब ये जानते थे कि जंग की कोई ना कोई खबर नेथन रॉथस्चाइल्ड को जरूर मिली होगी, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड खानदान के ज़ाती मवासलाती निज़ाम की तेजी से उस दौर के सब लोग बखूबी वाकिफ थे, और वो जानते थे कि जंग की कोई भी खबर हो वो सबसे पहले नेथन रॉथस्चाइल्ड के पास होगी। बज़ाहिरन नेथन रॉथस्चाइल्ड परेशान दिख रहा था, और अचानक नेथन रॉथस्चाइल्ड ने अपने ब्रिटिश बॉन्ड्स या स्टॉक तेजी से बेचना शुरू कर दिए, और वहाँ मौजूद तमाम सरमायाकार ये मामला देखकर यही समझे कि शायद नेपोलियन जंग जीतकर बरतानिया पर कब्जे के लिए रवाना हो गया है। लिहाजा बाकी सब सरमायाकारों ने भी अपना तमाम स्टॉक बेचना शुरू कर दिया, और बरतानवी स्टॉक मार्केट कुछ देर में ही तबाहकुन हद तक गिर गई। और फिर स्टॉक मार्केट के गिरने की थोड़ी देर बाद नेथन रॉथस्चाइल्ड ने अपने कारिंदों के जरिए बरतानवी बॉन्ड्स वाफिर मिकदार में निहायत सस्ती कीमत के एवज खरीदना शुरू कर दिए, और इस दिन के इख्तिताम पर नेथन रॉथस्चाइल्ड न सिर्फ ब्रिटिश स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया, बल्कि बैंक ऑफ इंग्लैंड भी उसके इख्तियार में चला गया। एक और दिलचस्प बात कि गिरी हुई स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के लिए नेथन रॉथस्चाइल्ड ने कहां से और कैसे पैसे इकट्ठे किए, इसकी एक वाज़ह मिसाल का ताल्लुक नेथन रॉथस्चाइल्ड और जर्मनी के प्रिंस विलियम के साथ है, जो कि उस जमाने में यूरोप के शाही खानदान में से सबसे ज्यादा अमीर तरीन माने जाते थे। जब नेपोलियन ने प्रिंस विलियम को जिला वतन किया, तो उसने नेथन रॉथस्चाइल्ड को करीब 5,50,000 पाउंड भेजे, ताकि वो बरतानवी हुकूमत के स्टॉक बॉन्ड्स खरीद ले, जिसको गवर्नमेंट कंसोल्स भी कहा जाता था। और उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए नेथन रॉथस्चाइल्ड ने गिरी हुई स्टॉक मार्केट से भरपूर फायदा उठाया। जब विलियम ने रकम की वापसी का मुतालबा किया, तो उस पर नेथन रॉथस्चाइल्ड ने उसे वो पूरी रकम मुनाफे समेत लौटा दी, जो मुनाफा उसको हुआ होता अगर गवर्नमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की गई होती। ऐसे ही हरबे इन्होंने कई और यूरोपीय शाही और कारोबारी शख्सियात के साथ इख्तियार किए। इसके अलावा रॉथस्चाइल्ड खानदान की बाकी अफराद भी कोई घाटे में नहीं जा रहे थे। जहां एक जगह निजी बैंक्स बरतानवी हुकूमत की जंग में सरमायाकारी के जरिए मुआवनत कर रहे थे, ऐसे ही फ्रांस में नेपोलियन की इमदाद भी खुफिया तौर पर रॉथस्चाइल्ड बैंक्स के जरिए की जा रही थी, जिनके ताने बाने हैरत अंगेज तौर पे बरतानवी बैंक से जा मिलते थे। यानी एक ही सरमायादार खानदान के लोग जंग के दोनों अतराफ के साथ तावन करने में मसरूफ थे। जब 1850 में जेम्स रॉथस्चाइल्ड के फ्रांसीसी बैंक का ऑडिट किया गया, तो मालूम हुआ कि जेम्स के मातहत काम करते हुए बैंक के पास करीब 7 करोड़ फ्रैंक्स की मालियत तक असासे मौजूद थे, जो असासे उस दौर के दीगर तमाम फ्रांसीसी बैंक्स की इज्तमाई मालियत से 1.5 करोड़ फ्रैंक्स ज्यादा थे। और ऐसे जंगों, धोखे और फरेब के जरिए मुनाफा कमाते कमाते ये खानदान ना सिर्फ यूरोप का बल्कि दुनिया का अमीर तरीन खानदान बन गया। लेकिन यूरोप के बाद इस बैंकिंग माफिया ने अपना असर अमरीकी बैंकारी निज़ाम पर डालना शुरू कर दिया, जिसकी मुज़ाहमत अमरीकी प्रेसिडेंट्स ने भी की, जैसे कि जैक्सन और लिंकन। लेकिन बैंकस्टर्स माफिया की मुस्तकिल कोशिशों की वजह से आज भी ये निज़ाम बरकरार है, और इस निज़ाम की बका को अमरीकी कौमी सलामती के साथ जोड़ दिया गया है, जो निज़ाम आज हम पर पेट्रो डॉलर की शक्ल में मुसल्लत कर दिया गया है, जिसकी हकीकत हम आने वाले एपिसोड में तफसील से बयान करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अमरीकी डॉलर पर फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी जैसी नाम नहाद तंजीमों की अलामात क्यों मौजूद हैं।
آپ سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل برق میڈیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔